Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the benefits of manufacturing industries. Today, in this module, we are going to discuss about the most important topic for the industries is the industrial locations. Before start these things, you just imagine you are going to establish or install a one particular industry. Then what are the basic requirement you will keep in your mind before choosing a location for the industry? This we will cover in this particular topic only. See, the first and the most important requirement for any of the industry is the raw material. You will establish your industries only where the raw materials and the components parts are available. The first and the most important things we'll discuss about the inputs. ठीक है, see that particular picture that I am going to show you about that. This picture, you just take a look over there. The first, we will just find out where the inputs are available, like raw materials or components parts, factors of production, land, labor or capital, entrepreneurs or infrastructure. These all are the inputs that we need to provide to finalize the specific locations of any of the industry. But in all this, the first thing you will keep in your mind, that is the raw material. First you decide that where the availability of the raw material is available, then only that place you will choose to establish your industry first. ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, कि ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेसेस इज देयर एनी सर्विसेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन और नॉट, मीन्स द फैसिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर एरियाज और नॉट. Then after you will do just simply factors, आउटपुट प्रोडक्शन, देन ट्रांसपोर्ट एंड द मार्केट. ठीक है, ये जो पूरी टेबल्स है ये शो कर रहा है कि हम जब कभी भी कोई भी इंडस्ट्रियल लोकेशंस की बात करते हैं, देन विच लोकेशन वी विल फाइंड दैट इट इज़ सुटेबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. तो वील कीप समथिंग इन माई माइंड कि फर्स्ट थिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी प्रॉपर, यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पर रॉ मटेरियल की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो. जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, इन आर लोकेशन दैट इज़ पीलीभीत, द प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ द शुगर केन is available. That's why we see a lot of sugar factories are there. ठीक है, अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती तो यहाँ पर शुगर फैक्ट्री भी नहीं होती. ठीक है, तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल डिपेंड करता है. रॉ मटेरियल के बाद हम लोग बाकी कंपोनेंट्स को देखते हैं कि क्या वहाँ एरिया में लैंड अवेलेबल है या नहीं है, या ऐसा एरिया ना हो कि जहाँ पे हमें लेबर ही ना मिल पाए. ठीक है, तो ये सब हम इनपुट करेंगे. इनपुट्स के लिए भी हमको मनी की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट वी इन्वेस्ट द मनी एंड देन वी ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री, और फैक्ट्री के बाद फैक्ट्री उसका आउटपुट बनाएगी, एंड दैट आउटपुट फिर अगेन ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट फॉर द सेलिंग, एंड देन व्हेन इट यू सेल्ड इट यू विल गेट द मनी बैक. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है इंडस्ट्री का, कि कैसे इंडस्ट्रीज़ का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है. तो उसमें आपका ये सारी चीज़ें जो हैं वो okay, so all these things are required to maintain specific locations for the establishment of the industries. ठीक है, और what you simply do in the industry, you simply provide the input, then under the factory this input get processed, then you get the output. ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ IPO साइकिल पे पूरी इंडस्ट्रीज़ वर्क करती है. आप इनपुट में क्या प्रोवाइड करते हो? लैंड, लेबर, capital. These are the inputs that we provide to the industrial materials or industries members. Then we will get the output. प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद आउटपुट होगा, और वी सेल दिस आउटपुट मटेरियल्स टू द मार्केट एंड अर्न द मनी. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल ओवरऑल. ठीक है, देखिए यहाँ पर एक आइडियल लोकेशंस ऑफ एन इंडस्ट्री है कि आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करोगे और इस्टेब्लिश करोगे, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द इनपुट्स. देन फर्स्ट यू शुड कीप सम थिंग्स इन योर माइंड बिफोर चूजिंग द प्लेस फॉर द इंडस्ट्री. तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहला क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एट द साइट, यानी जिस एरिया पे आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं उस एरिया पे आप देखेंगे कि प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है. जैसे एक एग्जांपल के लिए मान के चलो कि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्शंस के लिए क्या कॉस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, या कितना पैसा जो है वो आपको
लगाना पड़ता है प्रोडक्शन करने के लिए। अगर प्रोडक्शन की कॉस्टिंग और मार्केट में सेलिंग की कॉस्टिंग में ज़्यादा डिफरेंस है तब तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल एट द साइट। आपको वहाँ पे रॉ मटेरियल ऑब्टेन करना है तो हाउ मच कॉस्ट यू हैव टू पे। अब एक एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, सपोज कि कोल इज़ अ मिनरल, ठीक, इट इज़ नॉट जनरली अवेलेबल इन आवर लोकेशन। अगर हम ऐसी कोई इंडस्ट्री लगाते हैं जिसमें बल्क में कोल यूज़ होता है तो हमारा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल में कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी, और जब उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन की सेलिंग कम होगी, तो उस केसेस में फैक्ट्री और या इंडस्ट्री को लॉस होता है। एंड नोबडी इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश अ इंडस्ट्री ऑन अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द लॉस। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन, एंड लास्ट है डिसीजंस टू लोकेशंस एट द साइट्स। ये तीन बेसिक फैक्टर्स हैं जो लोग डिसीजंस करते हैं। तो उसमें कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मल्टीपल प्रोडक्शन है। आप एक प्लेस से दूसरे, पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग के बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट के बाद वो मार्केट्स में पहुंचेगा, मार्केट्स के बाद वो कहीं और पहुंचेगा, तो उसके हिसाब से क्या कॉस्टिंग जाएगी लमसम। इन सारी चीज़ों को सम अप करके हम लोग इंडस्ट्रीज़ की लोकेशंस को फाइनलाइज करते हैं कि विच प्लेस मस्ट बी द सुटेबल प्लेस फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए वो है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू द नंबर ऑफ डिफरेंसेस और नंबर ऑफ कैटेगरीज, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल बेसिस, यानी कि रॉ मटेरियल्स कौन सा इनपुट कर रहे हो आप, उसके बेस पे इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका जैसे ओनरशिप के बेस पर होता है या आपका साइज़ के बेस पर होता है। ये बेसिक 3 क्लासिफिकेशन है। तो उसमें फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें हम जो रॉ मटेरियल इनपुट कर रहे हैं उनके बेसिस में सबसे पहला आता है एग्रो वेस्ट और सेकेंड आता है मिनरल वेस्ट। ये 2 बेसिक होते हैं। एग्रो वेस्ट वो जिसमें हम एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स को इनपुट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए, एक कंपनी है या एक इंडस्ट्री है, वो फैब्रिक बनाती है, तो फैब्रिक बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल यूज़ करती है कॉटन। कॉटन जो है वो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। If we are taking a agriculture production or a biological proceed productions as a raw material to make a finished good in any of the industry, that type of industry is known as agro waste manufacturing industry। ठीक है, अब जैसे इसमें वूलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, रबर है, ये जितनी भी है, या शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, एडिबल ऑयल्स है, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो इन टाइप के प्रोडक्शंस को बनाती हैं, इस टाइप के प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करती हैं, दे ऑल विल गो इन अ एग्रोवेज। वाई दे आर अ एग्रोवेज इंडस्ट्री? बिकॉज दे टेक अ रॉ मटीरियल एज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉटन मैंने बता दिया। अब आप जूट की बात करो तो जूट का भी प्रोडक्शन होता है, जूट की भी फार्मिंग होगी, उसके बाद वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सिल्क वॉर्म है, तो उसकी भी सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करने के बाद हम लोग उसको प्रोसेस के बाद ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस और प्रोडक्शन यानी नेचुरल प्रोसेस के बेसिस पे जो भी रॉ मटेरियल आप प्रोवाइड करते हैं जिस इंडस्ट्री को, वो एग्रो बेस्ड है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आता है मिनरल वेस्ट। मिनरल वेस्ट वो हैं जिनमें मिनरल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होगा। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, आयरन स्टील है, एलुमिनियम है, और मशीन्स टूल्स की इंडस्ट्री है, पैराकेमिकल्स वगैरह हैं। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ में हम कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं देते हैं, हम मिनरल्स प्रोडक्शंस देते हैं। जैसे मान लो किसी को आयरन स्टील इंडस्ट्री है, तो उसके लिए उनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? आयरन ओर। अब आयरन ओर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है, आप उसकी फार्मिंग नहीं करेंगे, ना ही वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि किसी भी एनिमल की बॉडी से बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो आउटपुट मिलता है, तो दैट विल गो इन दिस कैटेगरीज। ठीक है, सेकेंड है ऑन अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल्स। देखिए ध्यान से, बेसिक और द की इंडस्ट्रीज दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल्स टू द मैन्युफैक्चर एंड गुड्स, आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग्स, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। फिर है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोवाइड्स द गुड्स टू डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है और एक कंज्यूमर इंडस्ट्री। एक वो इंडस्ट्री जिसने आयरन से
या स्टील बनाने का काम किया। अब वो स्टील रॉ फॉर्म में, अब नोबडी इज़ गोइंग टू यूज़ द स्टील इन रॉ फॉर्म। अब हम लोग स्टील के बने हुए यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं या स्टील की बनी हुई और चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो एक इंडस्ट्री वो है जो स्टील बना रही है और एक इंडस्ट्री वो है जो स्टील से बने हुए यूटेंसिल्स बना रही है। ठीक है, तो दो इंडस्ट्रीज़, उसमें जो इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल मिनरल्स को यूज़ कर रही है और वो स्टील बना रही है, दैट इज़ गोज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ द बेसिक। And a industry which is making a utensils from taking a steel, that will go under the consumer। ठीक है, तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो है जो ऐसा फिनिश गुड बना रही है दैट इज डायरेक्टली कंज्यूम बाय द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, ओके। अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है या जो इकोनॉमिक वैल्यू है किसी भी इंडस्ट्री की, उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइजेशन किया जाता है। उसमें पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allowed on assets of a input। This limit can change over a periods of time। At the present the maximum investment allowed is ₹1 करोड़। यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी टोटल असेट्स इनपुट्स जो दी जाती है वो 1 करोड़ तक है, अप टू द 1 करोड़, वो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल, जैसे कॉटेज की है या आपकी सपोज दैट बास्केट की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टोकरी बनाने वाली छोटी मोटी चीज़ें जो बनती हैं मार्केट में आती हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ है उनका लगभग इनपुट्स जो होगा यूनिट्स है वो आपका 1 करोड़ तक रहना चाहिए, देन दे विल गो अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अच्छा, इससे बढ़ जाता है तो वो लार्ज स्केल की कैटेगरी में चली जाती है। यानी 1 करोड़ से अबव वाला जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिनका इनपुट होगा या जिनका टर्नओवर होगा वो आपकी जाएंगी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब है कि उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, हु इज़ द ओनर ऑफ द इंडस्ट्री। सो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की भी इंडस्ट्री हो सकती है, सरकार की भी हो सकती है, सरकार और उस पर्सन की जॉइंट भी हो सकती है। ओके, इसके अलावा किसी कॉपरेटिव सेक्टर की भी हो सकती है, मतलब बजाज की हो गई या किसी और की हो गई, तो ऐसी किसी कॉपरेटिव डिपार्टमेंट की भी हो सकती है। तो दिस विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस। तो इसमें क्या है, मल्टीपल कैटेगरी, जैसे पब्लिक सेक्टर है ओन्ड बाय द सेपरेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे आपका है BHSL है, SL है, सेल है, एक्सेट्रा। ठीक है, प्राइवेट वो है जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है या डाबर इंडस्ट्रीज़ है, ये सब प्राइवेट हैं जो एक या कुछ लोगों की कंबाइन इंडस्ट्री है, जैसे 10-15 लोगों ने मिलकर ग्रुप बना के एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर ली, लाइक दिस ओनली। इसके जॉइंट इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपकी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन वो आपका कहलाता है जॉइंट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, उसमें क्या है देखिए, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ठीक है, तो ये आपकी जॉइंट सेक्टर जाएगी। कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड और ऑपरेटेड बाय अ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। कोऑपरेटिव सेक्टर वो होता है जिसमें सप्लायर और प्रोड्यूसर एक है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर है। यानी एक ही पर्सन है जो रॉ मटेरियल का सप्लायर भी है और वो उसको प्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल्स एंड वर्कर्स ऑफ बोथ। ठीक है, तो ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर्स है जिसमें वो रॉ मटेरियल्स भी बना रहे हैं, उसके बाद उस रॉ मटेरियल से वो भी बना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए बिस्लेरी की किसी की वो है इंडस्ट्री, तो वो क्या है, उनकी एक शुगर फैक्ट्री भी है, तो शुगर फैक्ट्री से निकलने वाली जो मटेरियल है उसका वो रॉ मटेरियल यूज़ करके बिस्लेरी बना देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर्स का, गॉट दैट पॉइंट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट मटेरियल्स, उसमें आपकी हैवी और लाइट इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब इसके बाद हम लोग इंडिविजुअल वेस्ट पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सिलेबस में एग्रो वेस्ट है, मिनरल वेस्ट, बस 2 इंडस्ट्रीज़ है, एग्रो वेस्ट मेनली है। तो एग्रो वेस्ट की इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सी दैट कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर्स एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा आर द एग्रोवेज इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो ये सब आपकी एग्रोवेज इंडस्ट्रीज़ है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट दिस। थैंक यू।